Now we will analyze for Monday Nifty and Bank Nifty. So what would be the possibilities to study Nifty and Bank Nifty on Monday? Okay. So the Nifty is moving as we expected. जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही निफ्टी मूव हो रहा है. हमने ये कहा था कि हमने ये सोचा था कि ये निफ्टी अब ना नेक्स्ट 2 दिन में गैप डाउन ओपन ही होगा. उसी तरह वो गैप डाउन ही ओपन हो रहा है. ओके. एक्चुअली मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ा ऊपर के बारे में सोचा था. आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग अपसाइड मूव इन स्मॉलर टाइम फ्रेम दैट टू फॉर ए few hours or a or one day. Okay, but it didn't went up. It just again moving downside. Okay, so now we will think whether the wave C what that we are expecting or wave Y, to what extent it can go up, go down, or it will retrace upside. Now we will see. So this high we are still considering it might be X or it might be wave 3. Okay, so if it is a wave 3, suppose if this is the wave 3, then the wave 4 should not go beyond this 50%. Okay, so this is the maximum journey of this ABC. So if it falls beyond this 50%, then we can't consider this as a wave 4, and this top will be the X and journey will go further downside. Okay. So but there is another possibility also. Even though it may be a X, okay, so market may fall here. This might again form W. This is X. This is W. This X may go again upside, and again it will come downside like this. Okay, so there are more. This one possibility is there, or it may simply extend this wave C. So wave C may come anywhere. Okay, anywhere means up to 200% also it makes. Okay, see here up to 200%, and somewhere here this Y will complete its journey beyond this W. Okay, again if it wish to form X, it will form X, and again it may go up to, again it may form Z also. Okay, so it all depends on the further moves and news. Okay, but still at the moment the Nifty is at a crucial point. So it is at 50%. If it breaks this 50%, then still we may find downside move. Okay, so this is what about Nifty 50, but anything may happen. So everything depends on Monday's movements. Okay, so now we will go to Bank Nifty. If you see Bank Nifty, अगर आपने बैंक निफ्टी को देखा ना, ये एग्जैक्टली अभी 38% से रिवर्सल दे रहा है, लेकिन जो इसका फिबोनाची रेशियो है, जो टॉप टू बॉटम से बॉटम टू टॉप से अगर फिबोनाची डाला ना, तो ये अभी 38.2% से नीचे ट्रेड कर रहा है. ओके, सो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है अभी. यस, हाँ, सो ये जो है ना 38.2 बॉटम से टॉप लगा है, तो ये 38.2% से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची डाला ना, तो ये सी फेल्यूर का भी इंडिकेशन दे रहा है. सो ये अभी दोनों के बीच में, अभी भी एक क्लस्टर पॉइंट के बीच में अटका हुआ है बैंक निफ्टी. अगर ये इससे नीचे जर्नी स्टार्ट किया ना, तो ये भी बहुत फॉल हो सकता है. बियॉन्ड दिस वेव 4 ये भी फॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिग्री सब खत्म हो जाएगा. अगर कहीं पे अगर ये 81% से भी अगर यहाँ पे है ना 81% तक भी आ सकता है, क्योंकि ये वेव 2 भी फॉर्म करेगा ना. वेव 2 फॉर्म होना तो
अभी शायद वो पॉसिबल नहीं है अभी। तो ये अभी क्रूशियल पॉइंट पे है, अभी मंडे का मूवमेंट पे ही सब डिसाइड है अभी। ओके, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मंडेज मूवमेंट नाउ। Now we will move to gold. Gold from last 1 week. So our analysis, uh, we have made that it will go up to maximum 127%. तो ये वेव बी का ही चाल है एंड इट्स मूविंग टूवर्ड्स 127% और दिस 61.8% की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है, स्लो कर रहा है, नंबर ऑफ डेज ज़्यादा ले रहा है। तो जब तक ये इस दोनों पॉइंट के बीच में नहीं आएगा ना, तब तक ये स्लो ही रहेगा। उसके बाद ये फिर इसको यहाँ पे टच करके ये फिर नीचे जाने की तैयारी करेगी। ओके, सो गोल्ड इज इन वेव बी, सो इट विल बी वेरी स्लो और 61.8 या 127% टच करने की कोशिश करेगी। बिटकॉइन ना अब ए बी सी का मूवमेंट में जा रहा है ये। सो यहाँ से हमने इसको फर्स्ट का ये रखा है, इसको बी रखा है और इसको सी रखा है। ये ए बी सी हो गया, फिर नीचे का भी ए बी सी ऐसा करेगा ये सिर्फ अभी ना इसको ए बी सी के हिसाब से ही काउंटिंग करो इसको। ओके, सो नाउ this may become W and this may X because it has not crossed 81.2%। 81.2 से नीचे से ही ये रिवर्सल ले रहा है। देखिए यहाँ पे इससे नीचे ही रिवर्सल ले रहा है। Now it may come below this W now। So this you consider this one as a A, this one as a B, and this one as a C again, or WXY, whatever you feel। ओके, लेकिन ये फिर भी अभी नीचे का ही मूवमेंट है बिटकॉइन में, अभी भी इम्पल्स का कोई चाल नहीं है इसमें। ओके, सो दीज आर माय व्यूज अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, gold and bitcoin। As far as nifty and bank nifty are concerned, so monday's movements are very important। so जो मंडे का दिन का जो मोमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मंडे के होल डे अगर मार्केट अपसाइड रहा ना, तो नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए या नेक्स्ट 1 वीक के लिए हम मार्केट को अपसाइड ही लेके जा सकते हैं। अगर मंडे का मूवमेंट डाउन साइड रहा ना, तो नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक तक भी आप बोल सकते हो मार्केट डाउन साइड ही रहेगा। तो मंडे का मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अभी ना क्रूशियल पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है। वो इम्पल्स की तरफ भी लेके जा सकता है मार्केट को और बेरिश की ओर भी लेके जा सकता है मार्केट को। ओके, सो इट इज अबाउट द मार्केट। ओके, अगर आपको वीडियोस और एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। और मैंने कोर्स वीडियोस के हिसाब से फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इलियट वेव का वीडियो बना के डाल दिया है। यू प्लीज गो थ्रू इट। सो slowly weekly one video I will try to post। okay, but so there should be more number of subscribers so that I can make the next videos। okay, so if you like, please subscribe the channel। okay, and learn the Elliott wave at free of cost। okay, thank you।